Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dhiraj Garg and today we are going to do the 5th chapter from your class 11 English book Hornbill, and the name of the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. So the ailing planet means the planet is in really bad condition, the planet's health is declining, and the green movement was a movement which was started in New Zealand. A green party was also formed to take care of the environment. So this chapter basically deals with the declining health of Earth and a new kind of understanding developed in human beings to take care of Earth and a new holistic view emerging thereafter. तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए ये एक आर्टिकल था जो कि नैनी पल्कीवाला ने लिखा था एंड इंडियन एक्सप्रेस में ये पब्लिश हुआ था ऑन 24 नवंबर 1994. और द इश्यूज डेट ही रेज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस. तो जो उन्होंने इश्यूज रेज किए थे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो अर्थ के जो मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको ख़राब कर रहे हैं, तो वो इश्यूज आज भी क्या है, रेलिवेंट है. So let's start the chapter now. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. तो कहते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई आज तक मूवमेंट या कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसने क्या किया हो, पूरी ह्यूमन रेस का ध्यान इस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया हो, ऐसे ग्रिप किया हो उस अटेंशन को, ऐसे एंगेज किया हो ह्यूमन बींग्स को, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया है, जो 25 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था. जब ये आर्टिकल लिखा गया तब की बात है. और कहते हैं कि ये जो ग्रीन मूवमेंट था बड़ी रैपिडली, बड़ी तेज़ी से और पूरी तरह से इसने क्या किया था, पूरी मानव जाति का या वो सारी जो कंट्रीज थे वर्ल्ड के, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. And the very first Green Party was also found in New Zealand in 1972. And thereafter, since then, this movement has not looked back. Means this has only gained momentum over a period of time, and this has, you can say, widened its base, and this is continuing to have effect on environmental issues. We have shifted our hops irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. So the writer says that we have shifted our perspective. Earlier we used to see this world, this planet from a mechanistic view, but today our view is holistic and ecological. Means today we are seeing this planet in entirety. Okay, earlier we used to see it in a mechanistic way, means that it is there are some processes, chemical and physical processes, but today we have got this realization that this planet is really endangered and we need to take care of all aspects of it. We need to understand all aspects affecting it if we want to really take care of it. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. So the revolutionary nature of this movement, you can say that there is a shift in human perception. It has changed human perspective altogether. There has been a drastic change in human perspective because of this green movement. The way a change was brought by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. So that was a landmark event when Copernicus declared that the earth and the other planets revolve around the sun. And similarly, this change in the human perspective, that they have now started looking earth from a holistic point of view. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. तो पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एक वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस ये हो रही है, ये मतलब पैदा हो रही है कॉन्शियसनेस. इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया में एक ऐसा एक रियलाइजेशन हो रहा है लोगों को कि अब वो ये समझने लगे हैं कि जो धरती है वो खुद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके हम सभी पार्ट्स हैं, और उसके भी, इस अर्थ की भी क्या है, अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जिनका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और जिनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम रेकलेसली क्या करें, इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जाएं या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करते जाएं और मतलब कुछ भी इसका हम पे इफेक्ट नहीं होगा, इट विल बैकफायर.
सो वी नीड टू कीप इन माइंड ऑल दिस फैक्टर्स कि अर्थ की भी अपनी नीड्स है, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दोज थिंग्स, वी नीड टू share this planet with all other species so that there is a balance maintained. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. तो कहते हैं कि जो अर्थ के जो वाइटल साइंस है, जैसे किसी पर्सन की बॉडी के वाइटल्स होते हैं जब उसकी हेल्थ का चेकअप किया जाता है, तो इसी तरह अर्थ के भी कुछ वाइटल साइंस है, जो इंपॉर्टेंट साइंस है, वो ये दिखा रहे हैं कि अर्थ एक पेशेंट बन चुकी है, इसकी हेल्थ जो वो डिक्लाइन हो रही है, इसकी हेल्थ आप ये कह सकते हो ख़राब हो रही है। और धीरे धीरे हमने भी जैसे अपना एथिकल ऑब्लिगेशंस को समझने लगे हैं। एथिकल का मतलब हमारी मोरल ड्यूटी ये बनती है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस प्लेनेट के क्या बने, गुड स्टुअर्ड्स बने, इसके गुड केयर टेकर बने, और ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए हम क्या करें, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बने, हम एक लेगेसी, एक विरासत उनके लिए छोड़ के जाएं। ऐसा नहीं कि हम जैसे जितना भी हमारा लाइफ पीरियड है उस दौरान हम इस धरती पर रहें एंड वी जस्ट क्रिएटेड अ रकस एंड वी आर लिविंग नथिंग फॉर द कमिंग जनरेशंस। ऐसा नहीं है। वी हैव नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generations would need. So the very first time a term was coined, a term was you can say introduced, that was sustainable development, and it was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. तो देखिए सबसे पहले इस टर्म को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉपुलराइज किया था एक वर्ल्ड कमीशन था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे 1987 में, उन्होंने इसे पॉपुलराइज किया। उन्होंने कुछ इस तरीके से इसे डिफाइन किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जो डेवलपमेंट सस्टेन कर सके, मतलब कि वो डेवलपमेंट, अगर आप प्रोग्रेस करते हैं, अगर आप डेवलप होते हैं, तो आप आज की ज़रूरतों को तो ध्यान में रखिए और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रख के चलिए। ऐसा नहीं, सपोज इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ पेट्रोल, तो जैसे पेट्रोल है, अगर हम अभी लोग यूज़ कर रहे हैं और अगर हम कितने भी डेवलप हो जाएं और अगर ऐसा हो कि 30-40 ईयर्स डाउन द लाइन की ये पेट्रोल रिसोर्सेज है जो ख़त्म हो जाएं, कोई अल्टरनेटिव ना हो इनका, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। मतलब अभी तो प्रोग्रेस हो रही है लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हमने ध्यान में नहीं रखा, सो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, और जो भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है या जो भी चीज़ें आज हमको ज़रूरतें पड़ रही हैं, मतलब वही चीज़ें हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संभाल के रखें। सो दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. तो देखिए एक लुसागा जाम्बिया नाम की जगह है, वहाँ एक जू है और वहाँ एक पिंजरा है जिसके अंदर एक नोटिस लगा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। और जब आप उस पिंजरे के अंदर देखते हैं तो वहाँ कोई जानवर आपको नहीं दिखेगा, वहाँ एक मिरर दिखेगा जिसमें आपको अपनी आप अपने आप को देख पाओगे उस मिरर में। तो इसका मतलब क्या है कि एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सबसे जो ज़्यादा इस नेचर को जिसने नुकसान पहुंचाया वो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, इसलिए उनको दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर वहाँ पे मतलब उस नोटिस पे लिखा हुआ है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. तो इस अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो अलग अलग एजेंसीज बनी हैं, जिन्होंने जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, जिन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ उठाए हैं, तो उनके एफर्ट्स की बदौलत आज क्या हो रहा है कि ये जो दुनिया का सबसे जो खतरनाक जानवर है जिसे इंसान कहते हैं, इसके अंदर एक नई अवेयरनेस आई है, ठीक है। अब वो समझने लगा है कि पहले वो डोमिनेट करके रखता था इस प्लेनेट को, वो समझता था कि उसी का अधिकार है, वो जो चाहेगा वैसा होगा, लेकिन अब वो ये समझने लगा है कि सिर्फ मैं डोमिनेट नहीं कर सकता, इट विल बैक फायर। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लॉइट करूँगा रिसोर्सेज को तो अर्थ और ये जो है रिसोर्सेज हमसे ज़रूर बदला लेंगे। तो अब वो पार्टनरशिप इसको देखने लगा एक पार्टनरशिप के तौर पे कि मैं अर्थ को और स्पीसीज़ के साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर मैं शेयर करूँगा, उनको भी अगर रहने दूंगा, तभी मैं खुद रह पाऊँगा। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. देखिए साइंटिस्ट ने जो एक लिस्ट बनाई है, एक जो सूची तैयार की है, वो है लगभग 14 लाख के करीब लिविंग स्पीसीज़ की, जिनके साथ इंसान जो है इस धरती को शेयर करता है। मतलब इंसान के अलावा 14 लाख और तरह मतलब अलग तरह के
लिविंग स्पीसीज यहाँ पे रहते हैं। और जो अभी तक जिनकी सूची नहीं बनी है या जिनको डिस्कवर नहीं किया गया है उनके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान हैं। बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वो 3 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक ऐसी लिविंग स्पीसीज हो सकती है जो आज भी गुमनामी के अंधेरे के अंदर लैंग्वेज हो रही है। मतलब वो आप ये कह सकते हो कि गुमनामी के अंधेरे के अंदर गुम हो रही है, जिनका किसी को कोई पता नहीं है, वो दे आर फोर्स्ड टू रिमेन देयर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी अभी भी स्पीसीज है जिनको डिस्कवर नहीं किया गया, जिनका पता नहीं लग सका है। ठीक है, इग्नोमिनियस आप ये कह सकते हैं कि अपमानित या इंसल्टिंग, और लैंग्वेज का मतलब कोई चीज़ कहीं पे रहने के लिए मजबूर हो जाना। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brandt report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? तो एक इंटरनेशनल कमीशन बना था और जिसने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के मुद्दे पे मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन उठाए थे, और उनमें एक प्रोमिनेंट इंडियन भी थे, उनके अंदर डिस्टिंग्विश्ड इंडियन भी थे उस कमीशन के अंदर, जिनका नेम था मिस्टर L.K. झा। और पहली जो उसकी रिपोर्ट थी उसने एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन वहाँ पे उठाया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो पहला जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया था कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले, एक झुलसा हुआ प्लेनेट जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, जिसके लैंडस्केप्स गरीब होते जा रहे हैं, मतलब पेड़ों को आपने काट दिया है। ठीक है, वो पहले जैसी आबो हवा नहीं है और एनवायरनमेंट जो है वो अनफिट है रहने के लिए, बीमार करने वाला है। क्या ये छोड़ के ये विरासत में दे के जाने वाले हैं हम अपने आने वाली पीढ़ियों को? तो ये बड़ा ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन था। Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands and croplands. तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो उन्होंने ये बताया था कि धरती की जो मेन 4 बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, जैसे कि फिशरीज है, फॉरेस्ट्स है, ग्रासलैंड्स है एंड क्रोपलैंड्स है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये 4 जो मेन सिस्टम है यही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन है। कैसे हैं? इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. तो कहते हैं कि ये जो मेन सिस्टम जो आपको बताए ये सिर्फ हमें फूड ही प्रोवाइड नहीं करते, इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कुछ एक इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के, जैसे कि मिनरल और पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स है, उनको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. तो कहते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में क्या हो रहा है कि इंसान इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो ये जो 4 सिस्टम्स है ये अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा जितना ये हमें प्रोडक्शन दे सकते हैं उससे ज़्यादा हम इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इम्पेयर का मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. और जब ऐसा होता है, जब आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग जाते हो तो फिशरीज कलेप्स कर जाती है, मतलब और मछलियाँ नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो गायब होने लग जाते हैं, ग्रासलैंड्स जो है वो बंजर भूमि में वेस्टलैंड्स में कन्वर्ट होने लग जाती है, और क्रॉपलैंड्स जो है वो ख़राब होने लग जाती है। देखिए एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे कि हमने केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने स्टार्ट किए हैं, तो उसके बाद जो है सोइल की आप ये कह सकते हो कि क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो रही है। इसी तरीके से अगर फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो वो फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, हम वहाँ पे सेटलमेंट्स और इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा रहे हैं। फिशरीज कलेप्स कर रही है ज़्यादा फिश एक्सट्रैक्ट करने के कारण, मतलब एंड इसी तरीके से ये क्रॉपलैंड्स भी डिस्ट्रॉय हो रही है। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. तो देखिए कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो प्रोटीन कॉन्शियस है, मतलब लोगों को पता है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उनके लिए बैलेंस डाइट के लिए, और प्रोटीन हंग्री भी है, मतलब उनको प्रोटीन मिल भी नहीं पा रहा उतना, तो इसलिए ओवर फिशिंग कॉमन हो गई है, मतलब जितनी फिशिंग होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है। ठीक है,
और गरीब देशों के अंदर तो क्या है कि लोकल फॉरेस्ट को क्या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, डेसिमेट कर दिया गया है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे कुकिंग के लिए फायरवुड यूज़ कर सके। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मतलब उनमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, वो आज भी फायरवुड यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए स्टोव में। तो इन सम प्लेसेस फायरवुड जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि आप फायरवुड के ऊपर जो मतलब पोट रखते हो ना कुछ पकाने के लिए, उसके अंदर चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती जितनी कि उसके नीचे की लकड़ी महंगी होती है। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mears, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. तो देखिए ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर मायर्स के अकॉर्डिंग क्या है, एवोल्यूशन का पावर हाउस है। मतलब जो बहुत सारी स्पीसीज है इवोल्व वहीं से हुई है, और अगर वो बर्बाद हो गए, अगर वो नष्ट हो गए, तो क्या है बहुत सारी स्पीसीज को एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, मतलब वो विलुप्त होने के कगार पे आ जाएगी। इट हैज़ बीन वेल सेड that forests precede mankind, deserts follow। और ये बात सही भी है कि इंसान के आने से पहले जंगल होते हैं, और जब इंसान चला जाता है इस धरती पे आके तो उसके बाद रेगिस्तान बसते हैं। तो ये बात सही भी है। The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। तो देखिए जिस टाइम ये आर्टिकल लिखा गया था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं कि दुनिया की जो सबसे पुरानी पैट्रीमनी जो है, एक जो मतलब हमने इनहेरिट की है, जो आप कह सकते हो कि पैतृक संपत्ति है, विरासत में जो हमें मिला है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है आज किस रेट से इरोड हो रहे हैं, किस रेट से ख़त्म हो रहे हैं। वो एक साल के अंदर 40 से 50 मिलियन एकड़ वो ख़त्म हो रहे हैं। और कहता है कि जो मतलब बर्निंग के लिए डंग का यूज़ किया जाता है, जो गोबर होता है मतलब पशुओं का यूकेजन से, तो वो जो बर्निंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो सोयल को एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। मतलब वो यूज़ तो बर्निंग में हो जाता है, तो नेचुरल फर्टिलाइज़र वो डंग नहीं मिल पाता है। और वर्ल्ड बैंक ये एस्टिमेट कर रहा है कि आगे अभी जितने हमें 2000 के अंदर फ्यूल वुड की जितनी डिमांड होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज हम जितना ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं उसको 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। जेम्स पेथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we were losing the forests at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जो है जेम्स पेथ, उनका क्या कहना है, एक दिन उन्होंने कहा था कि हम कह रहे हैं ना कि हम 1 सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट खो रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा हम फॉरेस्ट को मतलब काट रहे हैं। तो कहता कि 1 एकड़ नहीं, 1 सेकंड के अंदर ये लगभग 1.5 एकड़ के करीब हो चला है अब। Article 48A of the Constitution of India provides that the states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 48A है, तो उसके अंदर ये साफ लिखा गया है कि ये देश की ये कोशिश रहेगी, गवर्नमेंट की ये कोशिश रहेगी कि वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, और देश के अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट है उनको सुरक्षित रखेंगे। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन जिस बात पे सबसे ज़्यादा दुख होता है, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ये है कि इंडिया के अंदर जो है ना कानून है, वो ना ही तो मतलब कभी रिस्पेक्ट उनको किया जाता है, ना ही कभी वो इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा है ना कि जातिवाद है, अनटचेबिलिटी है, और जो बंधुआ मजदूरी है वो भी क्या अबोलिश की जाएगी, नष्ट की जाएगी। लेकिन आज आज़ादी के 44 ईयर्स के बाद भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 44 ईयर्स के बाद भी वो चीज़ें धड़ल्ले से चल रही है, शेमलेसली फ्लोरिश कर रही है, मतलब वो ग्रो कर रही है वो चीज़ें आज भी। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। तो देखिए एक पार्लियामेंट की एस्टिमेट कमेटी की एक रिपोर्ट की अगर बात माने, तो कहते हैं कि पिछले 4 दशकों में, पिछले 40 सालों के अंदर क्या हुआ है, इंडिया के जो फॉरेस्ट है उनके अंदर एक कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन हुआ है। मतलब एक आप ये कह सकते हो कि बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस तरीके से वो डिप्लीट हुए हैं, इस तरह से वो फॉरेस्ट खत्म हुए हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। और अगर हम एक रिलायबल डाटा की बात माने तो इंडिया जो है एक साल के अंदर 37 लाख एकड़ जो है वो फॉरेस्ट खो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times the rate indicated by government statistics।
तो जो बड़े एरियाज हैं जिनको ऑफिशियली भी क्या कहा गया है, फॉरेस्ट लैंड कहा गया है, वो आज लगभग मतलब ट्रीलेस हो चुकी है, वहाँ पे पेड़ ही नहीं बचे हैं। और जो ये तो हमने ऑफिशियल डेटा की बात की ना, और कहते हैं कि जो एक्चुअल लॉस है ना फॉरेस्ट का, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए डेटा से 8 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. तो एक 3 साल की स्टडी की थी यूनाइटेड नेशंस ने सैटेलाइट से और एरियल फोटोग्राफी लेके। तो इसमें उन्होंने स्टडी में ये पाया कि जिन 88 कंट्रीज़ की उन्होंने स्टडी की थी उनके अंदर एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि उनमें से कई में तो ये क्रिटिकल की स्टेट में हो चुका है, कि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो चुका है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो जिस तरीके से ग्रो कर रही है पॉपुलेशन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब हम ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर की बात करें तो उसे ख़राब करने के लिए वो एक बहुत बड़ी एक रुकावट है, अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। तो कहते हैं कि इंसान को फर्स्ट बिलियन तक पहुँचते मतलब 100 करोड़ बनते जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की 100 करोड़ तब हुई थी। इसको 100 करोड़ होने में अ मिलियन ईयर्स लग गए थे, 10 लाख साल लग गए थे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। तो मतलब 1800 के अंदर पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो 100 करोड़ थी। बाय द ईयर 1900 a second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion। तो कहते हैं कि अगले 100 साल के अंदर ही फिर से 100 करोड़ लोग और ऐड हो गए उस पॉपुलेशन में। मतलब पहले 100 करोड़ लोग इस धरती पे होने में काफ़ी लाखों साल लगे, लेकिन अगले 100 करोड़ और जो ऐड हुए वो अगले 100 साल में ही हो गए। और 20th सेंचुरी ने तो क्या किया, 370 करोड़ लोग और ऐड कर दिए। और जब ये आर्टिकल लिखा गया था तो उस टाइम जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी दैट वाज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, मतलब 570 करोड़ के करीब। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। और उस दौरान हर 4 दिन में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन से बढ़ रही थी, मतलब हर 4 दिन में 10 लाख से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in number continues। तो देखिए कहते हैं कि जब इनकम बढ़ती है इंसान की तो जो फर्टिलिटी है वो गिरती है। फर्टिलिटी वो गिरती है का मतलब क्या है, मतलब पॉपुलेशन के जो इंक्रीज होने की रेट है उसमें गिरावट आती है। एजुकेशन, जब लोग एजुकेटेड होते हैं, जब लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है तो वो स्मॉल फैमिली की मतलब इम्पोर्टेंस को समझते हैं, ठीक है। तो उससे फर्टिलिटी गिरती है, मतलब जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। तो इसलिए डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब लोगों को एजुकेटेड करना चाहिए, उनकी हेल्थ इंप्रूव करनी चाहिए, ताकि जिससे क्या हो, वो सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब बर्थ कंट्रोल का सबसे अगर सही मेथड है वो डेवलपमेंट, कि आप लोगों को एजुकेट कीजिए उन्हें, और इससे क्या होगा कि उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी और वो फिर मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करेगा। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना अगर इस तरीके से, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर ये कंटिन्यू बढ़ती रही तो। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। अमीर तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो बच्चे पैदा करता है, और जिससे क्या वो और गरीबी के जाल में फंसता चला जाता है। वो ये समझता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा वर्कर्स होंगे, ज़्यादा कमाने वाले होंगे, लेकिन इसका ये ज़रूरी नहीं है। बात ये है कि ज़्यादा लोग होंगे तो इसका मतलब ज़्यादा लोग बिना काम वाले होंगे, बेरोज़गार होंगे, जिससे उसके ऊपर बर्डन और बढ़ेगा। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. और कहते हैं कि ये बात सजेस्ट नहीं की जानी चाहिए, जैसे जानवरों का क्या कर दिया जाता है, उन्हें स्टरलाइज कर दिया जाता है, उनकी नसबंदी वगैरह कर दी जाती है, जिससे वो मतलब बर्थ कंट्रोल हो जाता है, वो मतलब ऑफ स्प्रिंग्स या बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। लेकिन ये ह्यूमन बींग्स में ऐसे ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। और जो फैमिली प्लानिंग जो है, वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब लोगों को एनकरेज करना चाहिए वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग के लिए, उन्हें कोई कोर्स नहीं करे, कोई मतलब जोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हें खुद ये समझना चाहिए कि उनकी चॉइस ये होनी चाहिए कि या तो पॉपुलेशन कंट्रोल करें या फिर गरीबी के अंदर ही कंटिन्यूएशन रहे, उनका परपिचुएशन रहे। मतलब वो या तो गरीबी में ही जीते रहे, वो कंटिन्यू रहे, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल होकर वो अपना लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव करे।
The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire populations of Africa and South America put together. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. और जिस टाइम ये आर्टिकल लिखा गया था तो कहते हैं कि उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन 92 करोड़ थी और उसमें जो है अफ्रीका और साउथ अमेरिका की उस टाइम जो पॉपुलेशन थी उससे दोनों से अगर मिला दें तो उनसे भी ज़्यादा। और कहते हैं कि इंडिया की कंडीशन से जो फैमिलियर है तो वो इस बात में कोई शक नहीं करेगा, कोई संदेह नहीं होगा कि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक लोगों की जो है उम्मीदें हैं उनकी गरीब झोंपड़ियों के अंदर ही मरती रहेगी। For the first time in human history we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future. तो पहली बार ऐसा हो रहा है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कि हम एक ट्रांसेंडिंग कंसर्न देख रहे हैं। मतलब इंसान अभी खुद को छोड़ के पूरे अर्थ के बारे में सोचने लगा, मतलब अपने कंट्री के बारे में नहीं। उसको ये पता है कि अगर दुनिया के किसी भी देश में कुछ होगा आज तो उसका देश उससे अफेक्ट हुए बिना नहीं रह सकता है। तो एक ट्रांसेंडिंग कंसर्न है और इन सब चीज़ों को पार करते हुए एक कंसर्न ये हो गई है कि खुद का सर्वाइवल नहीं, प्लेनेट का सर्वाइवल होना चाहिए, क्योंकि प्लेनेट को सर्वाइव करेंगे तो शायद हम लोग या आने वाली पीढ़ियाँ भी सर्वाइव कर जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, हमारे एग्जिस्टेंस का एक होलिस्टिक व्यू लेना स्टार्ट कर दिया। होलिस्टिक का मतलब कि हमें एनवायरनमेंट के अंदर इम्बैलेंस नहीं आने देना है। किसी भी तरह का इम्बैलेंस जो है कल को हमारा ही एग्जिस्टेंस है वो खतरे में डाल देगा। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो मतलब ये नहीं इंडिकेट कर रही कि हमारा डिमाइज है या हम लोग जैसे एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बल्कि ये हमारा फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है। जैसे पासपोर्ट ज़रूरी होता है कहीं बाहर जाने के लिए, तो अगर हमें फ्यूचर में जाना है, अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें एक सुरक्षित भविष्य देना है तो उसके लिए हमें इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हमें इन्हें रिमूव करना होगा। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। और जो एक नया विजन उभरा है, जो दुनिया एक नई बात मानने लगी है, उसमें क्या है, पूरी दुनिया को एक इकट्ठे के तौर पे देखा जा रहा है। मतलब अलग अलग कंट्रीज अपना नहीं सोच रही कि मैं ऐसा करूँगा तो ठीक है मेरा कंट्री इफेक्ट होगा। सभी को ये पता है क्योंकि ये सारे कंट्रीज आज इंटर डिपेंडेंट है। अगर दुनिया के किसी हिस्से में अगर ओजोन लेयर में आप ये कहते हैं होल आता है तो क्या होता है, उससे भी पूरी दुनिया अफेक्ट होती है मोस्टली। और अगर जो ग्लोबल टेम्परेचर या अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे भी क्या है, पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ता है। तो सभी ये सोच रहे हैं कि मतलब एक नई अंडरस्टैंडिंग आई है कि पूरी दुनिया को एक मान के देखा जा रहा है अलग अलग की बजाय। इससे एक नया युग आया है ये जिम्मेवारियों का, लोग ज़्यादा अवेयर होने लगे हैं। इसलिए इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." तो देखिए इसके लिए इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री भी एक बड़ी कल्प्रिट है एनवायरनमेंट को ख़राब करने में, पोल्यूशन के जरिए या जो भी आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। तो कहते हैं कि एक मिस्टर एडगर एस वुलार्ड जो थे ड्यूपॉन्ट के चेयरमैन, तो कहते हैं कि उनके जैसे बिजनेसमैन बनने की ज़रूरत है जिन्होंने 5 साल पहले डिक्लेयर किया था। कहते हैं कि मैं कंपनी का CEO तो हूँ, इसका मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं हूँ, मैं चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। वैसे CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो अपने आप को वो चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर कहते हैं। और कहते हैं कि हमारी अगर कंपनी को एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनना है और बने रहना है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करना होगा, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस भी अच्छी हमारी होनी चाहिए। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her felicitous words, "No generation has a freehold on this earth, all we have is a life tenancy with a full repairing lease." तो कहते हैं कि जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थैचर, उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी थी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टाइलिश यूज़ होती है इंग्लिश के अंदर जिसका यूज़ किया जाता है, उनके जो फेलिसिटस वर्ड्स हैं, उनके जो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड्स उन्होंने जो यूज़ किए थे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड्स उस सिचुएशन में, वो ये थे कि कोई भी जनरेशन इस धरती पर जो आती है ना, उसका कोई फ्री होल्ड नहीं है इस अर्थ पे। फ्री होल्ड का मतलब कि उन्हीं की प्रॉपर्टी समझ के वो कुछ भी उसके साथ करते जाएँ, अर्थ को ख़राब कर दें, स्पॉइल कर दें,
ऐसा नहीं है, हम सभी एक लाइफ टेंडेंसी पे हैं, मतलब एक किराएदारी पे आए हैं। ये धरती हम किराए के लिए लेते हैं अपने लाइफ पीरियड के दौरान, और विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमारे पास ये है अधिकार कि हम अगर इसको नुकसान कुछ पहुंचाते हैं तो उसे हम रिपेयर कर सकें, वो लीज है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसे सिर्फ अपनी अर्थ समझ के कि और किसी का इसका यूज़ नहीं करना है, ऐसे इस तरह से ख़राब भी नहीं करना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। और मिस्टर लेस्टर ब्राउन भी कहते हैं बिल्कुल ठीक कि हमने इस धरती अपने फोर फादर से, अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं की है, बल्कि ये हमने अपने बच्चों से उधार ली है, ठीक है। ये उन बच्चों की धरोहर है हमारे पास, या उन बच्चों के लिए हम एक ट्रस्टी है, इस अर्थ को उनके लिए संभाल के रखें। सो दिस वॉज योर चैप्टर एलिंग प्लैनेट अर्थ द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो इसमें बेसिकली यही बात की गई है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि जो अर्थ है वो एक इंटीग्रेटेड होल है। जैसे कि हम अगर बात करें पेरिस क्लाइमेट डील की, या जो भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें भी सभी कंट्रीज़ की कंसर्न है, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर भी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस अर्थ को एक होलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो आई थिंक विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।